ओम ज्ञानं तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगन्धगुणाथवितं तं सजीवं सागरवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगन्धललिता श्रीविशाखवितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी जी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदेश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिय कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण भगवान की जय। स्टार्ट करें मुझे यहाँ से। तो हाँ, मतलब इसमें अभी वो डिस्कशन चल रहा है डॉक्टर स्टॉल और प्रपात का, जिसमें डॉक्टर स्टॉल कह रहे हैं कि चैंटिंग कीर्तन ऐसा करके जो वर्ड है संस्कृत का भगवत गीता में क्या, लेट्स सी, हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम। तो कीर्तयन्तो माम में प्रपात बता रहे हैं कि चैंटिंग काफी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर स्टॉल कह रहे हैं नहीं, कीर्तयन्तो माम मतलब तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी हो सकता है। इस तरह से करके मतलब बैक एंड फोर्थ लेटर्स का ये डिबेट चल रहा है। तो उसी में कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। ये जो अब हम टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ये प्रपात का ही रेस्पॉन्स है डॉक्टर स्टॉल के लिए। ठीक है। सो इन द नारद Pancharatra, it is stated that all the Vedic rituals, mantras, and understanding are compressed into the 8 words Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Similarly, in the Kali Santaran Upanishad, it is stated that these 16 words Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare are essentially meant for counteracting the degrading and cultivating influence on this materialistic age of Kali. All these points are elaborately presented in my book, Teachings of Lord Chaitanya. Okay. Yes, Naveen Prabhuji. Okay, Hare Krishna Prabhuji, Hare Bol. Thank you so much Prabhuji for making it bigger. That's it. Yes, please. Prabhuji. All these points are elaborately presented in my book Teachings of Lord Chaitanya. The process of chanting is therefore not only the sublime method for practical perfection of life, but the authorized Vedic principle inaugurated by the greatest Vedic scholar and devotee, Lord Chaitanya, whom we consider an incarnation of Krishna. We are simply following in his authorized footsteps. Yes, the scope of the Krishna consciousness movement is universal. The process of regaining one's original spiritual status of eternal life, full with bliss and knowledge, is not abstract, dry theorizing. Spiritual life is not described in the Vedas as theoretical, dry, or impersonal. The Vedas aim at the inculcation of pure love of God only, and this harmonious conclusion is practically realized by the Krishna consciousness movement or by chanting the Hare Krishna mantra. Okay. Swati Mataji.
Hare Krishna. As the goal of spiritual realization is only one, love of God, so the Vedas stand as a single comprehensive whole in the matter of transcendental understanding. Only the incomplete views of various parties, apart from the bona fide Vedic lines of teaching, gives a rapturous appearance to the Bhagavad Gita. The reconciliative factor, adjusting all apparently diverse propositions of the Vedas, is the essence of the Veda, or Krishna consciousness, love of God. Thanking you once again, yours sincerely, A.C. Bhaktivedanta Swami. February 8, 1970. Swami A.C. Bhaktivedanta. Dear Swamiji, thank you very much for your kindness in sending me your long and interesting letter of January 30, together with the last issue of Back to Godhead. So far, I have had a few discussions with the members of your society here, but they were not entirely satisfactory from my point of view. But now I have your much more authoritative letter, whereby the discussion moves to a higher level. वो कन्विंस नहीं हो रहा है, वो समझ रहे ना, मतलब वो बाकी लेट और भी लोगों से बात कर रहा है, तो वो कन्विंस नहीं हो रहा है, वो ये बोल रहा है, कह रहा है कि चलो ठीक है, अब मेन आदमी से बात हो रही है, तो अब इसको हम दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हैं. And yet I am afraid you have not convinced me that all the scriptures you quote prescribe only chanting of the name of Krishna. Let me refer only to the most important ones. Yes, please. हाँ, तो वही मतलब चैंटिंग के उस पे ही चल रहा है अभी इसका. वो कह रहा है कि नहीं, अभी भी मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि सारे स्क्रिप्चर जो है चैंटिंग वगैरह की बात ही कर रहे हैं, है ना. Yes, आपको चांस दीजिए. In the Bhagavad Gita, chapter 9, 14 shloka, Kirtayanta need not mean chanting of the name of Krishna. It may mean glorifying, chanting, reciting, talking, and refer to songs, hymns, descriptions, or conversations. The commentators take it that way. मतलब वो कह रहा है कि डिफरेंट कमेंटेटर है, कोई कमेंटेटर बोलेगा कीर्तन का मतलब ग्लोरीफाइंग है, कोई बोल सकता है चैंटिंग है, कोई बोल सकता है रिसाइटिंग है, कोई बोल सकता है टॉकिंग है, कुछ भी बोल सकता है, कोई ऐसे बोल रहा है, क्योंकि भगवान ने तो कीर्तनतः बोल दिया, तो वो कह रहा है अब तो कमेंटेटर ने उसे फिर जो कहना चाहा वो कह दिया. तो कुछ एग्जांपल लेके आ रहा है उसके आगे. शंकरा इन हिज कमेंट्री merely repeats the word, but Anandagiri in his Vyakhya classes Kirtanam as Vedanta Shravanam Pranav Japascha, listening to the Vedas and muttering Om. That the Vedic Om is Krishna is said in Bhagavad Gita, where Krishna is also identified with many other things, and which is Smrti, but not in the Vedas, which are Shruti. Shruti Smrti तो मेरे ख्याल से हम तो जानते ही हैं, है ना. Another commentator Hanuman in his Peshach Bhashya says that Kirtayanta merely means Bhashmanha, means talking. Talking मतलब वही है, glorifying, भगवान के बारे में बात करना. Okay. Naveen Prabhuji. More important, I think, that the precise meaning of this word is that the entire verse does not require that everyone always engage in Kirtana, but merely states that some great souls do so. This is obvious from the next verse, which states that Anya, others, engage in Jnana, Yagyana, Yajato Mam, worshipping me with the worship of knowledge. The Bhagavad Gita is broad-minded and tolerant of variety of religious approaches, although it also stresses one aspect above all others, that is Sarva Phala Tyaga. मतलब समझ रहे हैं वो क्या बोल रहा है, जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस बोलते हैं कि जो भी लोग जप कर रहे हैं दे ऑल आर ग्रेट सोल्स, है ना. ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि जो जप कर रहे हैं उसने बहुत पुण्य कमाया है पुराना, एंड देन ऑल ऑफ देम आर ग्रेट सोल्स. बट उसका पॉइंट अलग, वो थोड़ा उल्टा बोल रहा है. वो कह रहा है कि भगवत गीता में तो ये कहा गया है कि कीर्तन करने वाले ही ग्रेट सोल है. मतलब कीर्तन करने वाले ग्रेट सोल नहीं, सॉरी अदर वे अराउंड, कि मतलब जो ग्रेट सोल है वही कीर्तन करते हैं. वो कह रहा है कि भगवत गीता में कहा गया है जो ग्रेट सोल है वही कीर्तन करते हैं, जबकि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो जो कीर्तन कर रहे हैं वो सब ग्रेट सोल है. दोनों में फर्क है, समझ रहे हैं. अदर वे अराउंड बोल रहा है, फर्क है, ठीक है. अब वो आगे क्या वो उसको फिर रेफरेंस भी दे रहा है. मतलब ये ना एक ये बहुत अच्छी डिबेट
है, क्योंकि उसने भी शास्त्र पढ़ रखे हैं, इसलिए वो बार बार रेफरेंस भी दे रहा है। तो वो कह रहा है कि ये तो देखो आगे वाले वर्ड से भी क्लियर हो जाता है जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्या कि ग्रेट सोल ही कीर्तन करते हैं, कि दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेक्स्ट वर्ड स्टेट दैट अन्य मतलब अदर्स एंगेज इन ज्ञान योग, वो जब ज्ञान व्यान के द्वारा वर्शिप करते हैं भगवान की। तो वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो है कीर्तन करने वाले ग्रेट सोल है या ग्रेट सोल जो है वही कीर्तन करते हैं, बाकी सब लोग तो वर्शिप करते हैं। ये क्लियर हो पा रहा है क्या? मतलब मेरे को तो ये अंडरस्टैंडिंग है, बाकी किसी को कुछ और है तो प्लीज बताइए। यही अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी, है ना? कि वो उल्टा मीनिंग लेके आ। हाँ, थोड़ा सा रिवर्स बोल रहे हो। हाँ, मतलब उसका पॉइंट ये है कि जो ग्रेट सोल है वही कीर्तन कर सकते हैं, और हम बोलते हैं कि नहीं, कीर्तन करके सब सोल ग्रेट बन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। yes, yes. ठीक है ना? और बाकी फिर वो ड्राई रिनंसिएशन की बात कराया गया, सर्व फला त्याग, सब फलों को त्याग दो। तो वो तो हम लोग भी बोलते हैं कि सब फलों को त्याग दो, बट हम त्याग के ये नहीं बोलते कि त्याग के छोड़ दो, हम बोलते हैं सब फलों को भगवान की सेवा में लगा दो। ठीक है, मेरा टर्न है क्या? मेरा वेट कर रहे हैं? नहीं, ओके ओके ओके। Finally, in the last sutra of the Vedanta Sutra, Anavriti Shabd refers to the scripture or to the revelation of the Vedas. As is clear from the context and from the commentators, Shankara quotes a number of texts ending with iti adi shabdaya. According to these shabds, to support this, that is, to support the statement that according to the scripture there is no return. He also refers to Shabd in this sutra by saying that mantra tratha vadadi, mantras, descriptions, etc. Vakaspati Mishra in the Bhamati supports this and clarifies it further by adding that a contrary view is Shruti Smriti Virodha, in conflict with the Smriti and Shruti. Thanking you once again for your kind attention. Yours very sincerely, JF Stoll. प्रोजेश ने तो कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा हाई फाई हो गया लास्ट पैराग्राफ, है ना? हाँ जी। मतलब अभी तक वैसे इतना तो समझ में आ गया कि तो चैंटिंग के लिए बोल रहा है कि भाई चैंटिंग ही सब लाइम है सारे रिलीजियस प्रिंसिपल का, ऐसा नहीं है। चैंटिंग के कमेंटेटर ने अपने अपने मतलब निकाले हैं। और दूसरा उसने बोला है कि चैंटिंग अगर कोई कर भी रहा है तो वो कोई ग्रेट सोल ही कुछ, मतलब बहुत ही कम लोगों को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को तुम चैंटिंग करने के लिए बोलो। कुछ ग्रेट सोल चैंटिंग कर सकते हैं, वरना वैसे तो सब लोग ज्ञान योग के माध्यम से भगवान की वर्शिप ही करते हैं। और फिर ये लास्ट पैराग्राफ में तो थोड़ा सिर के ऊपर से चला गया, क्या बोल रहा है शब्द को लेके और ये सब। मेरे को तो मतलब लगता है कई बार पढ़ना पड़ेगा तो ये समझ में आएगा, बट अगर किसी को समझ में आए तो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, वो ये बोल रहे हैं कि ग्रेट सोल्स की चैंटिंग, मतलब जो ग्रेट सोल्स की चैंटिंग करते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेट सोल है, ग्रेट सोल नहीं है? ये जो चैंटिंग कर रहे हैं वो ग्रेट सोल हो गए। वही तो हाँ, वो हम लोग बोल भक्ति योग में तो रहे यही हैं, बोलते हैं, भक्ति योग में हम लोग जो बोलते हैं कि चैंटिंग कर रहे हैं वो ग्रेट सोल्स हैं, लेकिन हाँ, दे आर सेइंग कि जो ग्रेट सोल्स हैं वही चैंटिंग करते हैं। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ऐसा बच्चा हुआ है ये ग्रेट सोल है? बेसिकली वो क्या कह रहा है कि वो पता है किस पॉइंट को हिट कर रहा है। प्रभुपाद ने जैसे सबको चैंटिंग पे लगाया है ना, तो अपने यहाँ सभी लोग चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो उस बात को हिट कर रहा है कि सबको चैंटिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ एक दो ग्रेट सोल होती हैं वो कर सकती हैं चैंटिंग में, उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर वैसे ज्यादातर लोगों को तो भगवान की वर्शिप करनी चाहिए। क्यों वो बोल रहा है ना वर्शिप के लिए? क्योंकि वेस्टर्न लोग जो पर्सनलिज्म में बिलीव करते हैं, मतलब वेस्टर्न में भी पर्सनल इम्पर्सनल है, बट जो पर्सनलिज्म में बिलीव करते हैं जीसस की, वो जो उनकी वर्शिप करते हैं, तो वहां पे वो उसको लेके आना चाह रहा है कि सेम ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कनक माता जी, हाँ जी प्रभु जी समझ। मतलब समझिए क्या बोल रहा हूँ? मतलब यहाँ पे ग्रेट का मतलब वो नहीं है जो हम बोलते हैं। हम तो ग्रेट बोलते हैं कि जिसने बहुत पुण्य कमा लिया, बहुजन्मनाम जन्मनाम, तो बोले वो ग्रेट सोल, तो बोले कि वो भक्ति योग फिर शुरू करते हैं। और वो कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भीड़ भड़क के इकट्ठे करते फिरो, आप सड़कों पे गाते फिरो, चलते कूदते फिरो, इसकी इतनी जरूरत ही नहीं है। बोले एक दो लोग कर सकते हैं, वो तो एक दो ग्रेट सोल कोई होंगी वो कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मेनली तो वर्शिप करो। he wants to say कि out of thousands अगर one ने कर लिया तो he is a great soul, तो हाँ इसलिए कर पा रहा है वो, नहीं तो नहीं कर पा रहा कोई भी। हाँ,
हाँ मतलब कह रहा है, और किसी ने बोले ऐसे नॉर्मल कर लिया तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है चैंटिंग करना। और फिर वो अच्छा, शास्त्रों का रेफरेंस दे रहा है कि कहाँ पे ऐसा बताया गया है कि अ, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मेन तो ये है, इस टाइप से। हम्म। और समझ रहे हैं? क्योंकि अब प्रभुपाद, Hallelujah. यस नहीं प्लीज। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आप कंप्लीट करिए, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। नहीं मेरा हो गया प्लीज। अरे ये लास्ट वाला मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, ये लास्ट वाला कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वो वही मैं बोल रहा था, कुछ क्लियर नहीं हुआ उसने क्या लिखा लास्ट में। मतलब वो फ्लो नहीं बन पा रहा है कि व्हाट इज ट्राइंग टू से। हाँ वो पुराने से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब सर्वफला त्याग तक तो क्लियर हुआ क्या कह रहा है, उसके आगे वो प्रभुपाद ही समझ पाएंगे। लेट्स सी आगे। हाँ लेट्स सी। हाँ Yeah. चलिए उदित प्रभु आगे बढ़ते हैं। Yes, Suji. Swati Mataji. February 15, 1970, J.F. Stoll, Professor of Philosophy and of South Asian Languages. My dear Dr. Stoll, I am very glad to receive your letter and dated Sunday, Feb 8, 1970. I am very much pleased also to note the contents regarding convincing you that all scriptures prescribe chanting of the name of Krishna. I can simply present the authority of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya recommended Kirtaniya Sadhari. Hari Krishna is constantly to be praised. Sikshashtaka 3. Similarly, Madhvacharya quotes Vede Ramayane Chaiv Hari Sarvatra Giyate. Hari is sung about everywhere in the Vedas and Ramayana. Similarly, in the Bhagavad Gita 15.15, the Lord says, Tadis cha sarver aham eva vedya. By all the Vedas, I am to be known. In this way, वैसे तो ये लाइन बहुत पावरफुल है, वेदाश्च सर्वे अहम एव वेद। तो अगर कोई वेद का रेफरेंस लेके मान लीजिए, क्योंकि वेद में काफी सारी चीजें हैं, मतलब काफी सारे ऐसे कोड में हैं जिससे आपको लगेगा कि वेद तो मायावाद के बारे में बता रहा है, और एक्चुअली मायावादी उन्हीं टेक्स्ट को लेके बताते हैं कि भगवान निराकार है। बट वो लोग भगवत गीता को ही मानते हैं, तो उन्हें इस लाइन को पढ़ाना बहुत जरूरी है, 15 जो आपने अभी हाईलाइट किया है, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद, कि जो कोई वेद है वो उनका पर्पस भी भगवान को जानना ही है। ये भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नो। करेक्ट ना? तो कोई वेद को लेकर भगवान निराकार है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको हम दिखा सकते हैं। पर फिर उसमें वो लोग ये क्या बोलते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि आई एम टू बी नोन मतलब कृष्णा के अंदर बैठ के वो निराकार बोल रहा है, वो ये कहते हैं, कृष्णा नहीं बोल रहे। वहां चीटिंग करते हैं वो लोग फिर, है ना? Anyway, ठीक है, मेरा टर्न है क्या? Mera. ओके प्लीज। In this way, we find all the scriptures aiming at the Supreme Person. In the Rig Veda 1.22.20, the mantra is Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasanti Suryaha. The demigods are always looking to the supreme abode of Vishnu. The whole Vedic process, therefore, is to understand Lord Vishnu, and any scripture is directly or indirectly chanting the glories of the Supreme Lord Vishnu. Yes, Suji, आप पहचान कर लीजिए. Yeah. Regarding the Bhagavad Gita, chapter 9, 14 verse, Kirtiyanta certainly means glorifying, chanting, reciting, and talking, as you have said. But glorifying, chanting, and reciting about whom? It is certainly Krishna. The word used in this connection is me. Therefore, we do not disagree when a person glorifies Krishna, as Sukdev did in Srimad Bhagavatam. This is also Kirtanam. The highest among all Vedic literatures is the proper place for such glorification of the Supreme Lord, Krishna. And this is to be well understood from the verse Nigam Kalpataru Galitam Phalam Sukha Mukhad Amrit Dhruva Samyutam Pibata Bhagavatam Rasam Alyam Muhur Aho Rasika Bhuvi Bhavukah. O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desired tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Sukadeva Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful.
although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Shloka 3. प्रभुपाद उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस बात को, वो जो कह रहा है ना कि चैंटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम का जप करना, ग्लोरीफाइंग। प्रभुपाद बोले हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है ना कि फिर हमें चैंटिंग में इतना फोकस क्यों दिया जा रहा है ना? समझ रहे हैं? कीर्तियंत माम में बोले, भगवान बोल रहे कीर्तियंत माम, मेरी कीर्ति का, मेरे मतलब मेरे कीर्तन करो मेरा। तो प्रभुपाद भी कंफर्म कर दिया कि कीर्तन करने का मतलब ऐसे नहीं कि चैंटिंग करो या लाउड कीर्तन करो या फिर यू नो, फिर तो हम भगवान के लेक्चर सुन भी सकते हैं, बता भी, प्रीचिंग भी कर सकते हैं, फिर तो बहुत ऑप्शंस हैं। तो हमें चैंटिंग पे क्यों फोकस किया जाता है ना, तो वो आगे आएगा, आना चाहिए इसमें। जैसे ऊपर ही कह रहे हैं माम, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम लो, तो मतलब ठीक है, नाम लो नहीं बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं नाम लो। मतलब अगर कोई भगवान का मतलब चैंटिंग का कोई रेफर कर रहा है, जैसे रिसाइटिंग, आप किसे रिसाइट कर रहे हो, तो इट इज सर्टेनली कृष्णा, द वर्ड इज यूज्ड इन कनेक्शन इज माम, मी। मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें ऐसा कि अगर आप चैंटिंग या किसी को रिसाइट करने की बात कर रहे हो, ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे हो, तो वो कृष्णा को ही करोगे, कृष्णा ही है है ना। नहीं, वो उसका पॉइंट ये था डॉक्टर स्टोल का कि कीर्तनता तो सब कमेंटेटर ने अपने हिसाब से निकाल लिया है, इसका मतलब सिर्फ चैंटिंग नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो आप बात सही कह रहे हो कि हाँ इसका मतलब सिर्फ चैंटिंग ही नहीं है, ग्लोरीफाइंग और वो सब कुछ भी है, बट किसका, कृष्णा का, इस बात को एग्री करो। तो वो इस बात को तो एग्री कर रहा है, बस वो ये कह रहा है कि तुम लोग जो चैंटिंग करते फिरते हो ना, ऐसे मत करो, तुम मतलब सिर्फ ग्लोरीफाई भी करोगे कृष्णा को, दैट इज आल्सो कीर्तन है। तो प्रभुपाद ने उसको हाँ किया है। और पॉइंट ये आता है कि फिर हमें इतना चैंटिंग में फोकस क्यों होता है, मतलब कनेक्ट कर पा रहा हो क्या सबसे, नहीं ना। मतलब हाँ, मतलब उसका आंसर आगे मिलेगा ना, अभी तो हाँ लेट्स सी, हाँ नहीं मिला तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। नहीं, मैं उसका सोच रहा था आंसर वैसे मिलेगा शायद, जो भगवान के नाम हैं वर्सेस एनी अदर नेम इज डिफरेंट। तो इसमें हम जो चैंटिंग कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भगवान का नाम लेके कॉल कर रहे हैं, तो वो एक डायरेक्ट कॉल टू, वर्सेस आप जब रीड कर रहे हैं तो वो शायद, आई मीन छोड़ो, आगे मिलेगा, मेंटल नहीं, स्पेकुलेशन आपका क्वेश्चन अभी डॉक्टर जो आप पूछ रहे हैं ना प्रभु जी, वो डॉक्टर स्टोल अभी पूछेंगे जस्टिस के बाद, और उसके तुरंत बाद प्रभुपाद उसका आंसर देंगे। ओके ओके, ये वाला ठीक है। क्वेश्चन मुझे याद है इसमें आता है, तो अभी डॉक्टर स्टोल पूछेंगे इसके तुरंत बाद। It is said that Maharaj Parikshit attained salvation simply by hearing, and similarly See, यहाँ पे हमारे, सॉरी प्रभु जी मैं आपको शो करूँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जैसे महाराज परीक्षित थे, वो चैंटिंग करते ही नहीं थे अगर एक तरह से देखा जाए तो। उन्होंने तो यहाँ पर बात एग्जांपल भी दे कह रहे हैं कि उन्होंने तो सिंपल हियरिंग से उनका काम चल गया। और सुखदेव गोस्वामी तो बोल के ही चैंटिंग करके ही एक तरह से, मतलब उन्होंने वो वाली चैंटिंग नहीं की, एक तरह से उनकी चैंटिंग मतलब भगवान ग्लोरिफिकेशन था, तो उन्हें वैसे मिल गया। तो बात कह रहे हैं कि 9 डिवोशनल प्रोसेस है, सॉरी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। In our devotional service, there are 9 different methods for achieving the same goal, love of Godhead. And the first process is hearing. This hearing process is called Shruti. The next process is chanting. The chanting process is Smriti. We accept both Shruti and Smriti simultaneously. We consider Shruti the mother and Smriti the sister because the child. We consider Shruti the mother and Smriti the sister. Sister. Sister of whom? आगे बताएंगे। Because the child hears from the mother and then again learns from the sister by description. Okay, got it. क्या है, समझाइए गुरु जी, समझ नहीं आया। आप प्रभु जी। नहीं मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग उसमें बोल रहे हैं कि श्रुति और स्मृति हैं, जैसे तो जैसे छोटा बच्चा है ना, वो माँ से सुन लेता है कि ये करना है ये नहीं करना है, पर कोई बड़ी बहन होती है तो उसे ज्यादा और डिस्क्राइब करके समझाती है ना उसको, बच्चे को। जैसे स्वाति माता हो गई यहाँ पर, और आलोक प्रभु जी की माता जी हो गई श्रुति। नहीं, मैं तो छोटी बहन हूँ। उसमें ऐसा नहीं लिखा छोटा बड़ा, उसमें तो बस बहन लिखा है। राइट। हाँ तो जैसे मतलब मेरी मम्मी ने जो है मुझे सुनाया कुछ, और स्वाति ने फिर उसे ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, स्कूल में आ जाओ फटाफट।
अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं फिर इसको ज्वाइन कर लिया। ज्यादा डिस्क्राइब करके मुझे समझाया कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। तो शी इज स्मृति, उसका नाम भी ऐसे शुरू हो रहा है स्वाति का भी, देखो कोइंसिडेंस। उल्टा है फिर तो मैं बोलूंगी आपने ही बताया। ओके, कंटिन्यू करना प्रभु जी, 8:26 हो गए हैं। पर ये इम्पोर्टेंट है, अभी हमारा वो क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है नहीं? ओके ओके, यस प्रभु। वो क्वेश्चन बना हुआ है ना अभी हमारा? बना कौन हुआ से है वाला, कौन से वाला क्वेश्चन? प्रभु जी की मतलब हरि नाम जो है, हरे कि कृष्ण chanting की ही क्यों? चैंटिंग क्यों करें? हम अगर परीक्षित महाराज को देखे तो उनका तो सिर्फ हियरिंग से काम चल गया। हालांकि कोई कह सकता है कि भाई चैंटिंग भी तो हियरिंग ही है, कृपा तो ये बोले बोलो उसे सुनो। तो अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है, हियरिंग से अगर वही बात है तो मैं चैंटिंग करके क्यों हियर करूं? मैं तो भागवतम सुन लूंगा, लेक्चर सुन लूंगा स्पीकर्स के, है ना? इसमें फिर ये पॉइंट भी आता है कि 9 प्रोसेस बताया प्रभुपाद ने, तो और कोई भी प्रोसेस करके आप भगवान धाम जा सकते फिर हैं। कोई एग्जैक्टली फिर कोई प्रोसेस, मेरे ख्याल से इसका भी आंसर आएगा अभी। 4 मिनट बचे हैं, अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो कर सकते हैं, वरना 4 मिनट में हम पढ़ भी सकते हैं। आई थिंक लेट्स फिनिश या इन 4 लेट्स फिनिश इट ऑफ। हाँ चलिए, ठीक है। तो किसका टर्न है? सॉरी, are two parallel lines. Srila Rup Goswami therefore says, Shruti Smriti Puranadi Panchantra Vidhim Vina Ekankitiki Harer Bhaktir Utpatave Kalpate Bhakti Ras Amrit Sindhu 1.2.101. That is, without references to Shruti, Smriti, Purans, and Panchantras, unadulterated devotional service is never achieved. Therefore, anyone who shows a devotional ecstasy without reference to the Shastra, Vedic scriptures, simply creates disturbances. On the other hand, if we एक्चुअली ये simply प्रभुपाद जो है ना, ये वाली लाइन पता है क्यों बोले? श्रुति स्मृति पुराण पंचतंत्र, मतलब कि इनके रेफरेंस के बिना, तो वो क्या कर रहा था ना, सिर्फ एक पर फोकस कर रहा था। उसने लास्ट में शायद एक पॉइंट बोला था कि स्मृति ज्यादा वो है श्रुति से, ऐसा कुछ उसका पॉइंट था। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, सभी जरूरी हैं और इनके अचीव किए बिना आपको अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस नहीं मिलेगी। इसलिए वो पॉइंट यहाँ पे आया। प्रभुपाद बोले नहीं, ऐसा एक से नहीं, सब जरूरी है। करेक्ट ना? yes, Prabhuji. ये सुनते जाओगे, चलिए। On the other hand, if we simply stick to the Shrutis, then we become Veda Vada Ratha, who are प्रभुपाद not बोल दिया यहाँ पे ये बात, है ना? अभी बोल दिया सिंपलिस्टिक जो श्रुति के बारे में बोल रहा था ना वो, who are not very much appreciated in the Bhagavad Gita. ले भाई उसका बैंड बजा दिया अभी। Not very much appreciated in Bhagavad Gita. Therefore, Bhagavad Gita, although Smriti is the essence of all Vedic scriptures, Sarva Panishdo Gavaha, it is just like a cow which is delivering milk, or the essence of all Vedas and Upanishads and all the Acharyas, including Shankaracharya, except the Bhagavad Gita as such. Therefore, you cannot deny the authority of Bhagavad Gita because it is Smriti. That view is Shruti Smriti Virodha, in conflict with the Smriti and the Shruti, as you have correctly said. ठीक है। Regarding Anandagiri, quotation, ये quotation उसने दिया था अपने लेटर में, है ना? तो प्रभात उसको रेफरेंस, उसको बारे में बताएंगे शायद। Regarding Anandagiri's quotation that Kirtanam means Vedanta Shravanam Pravanam Japascha, listening to the Vedanta and muttering Om. The knower of Vedanta is Krishna, and he is the compiler of Vedanta. He is Vedavit and Vedanta Krit. मतलब जो जैसे वेद सब पता में है और जिसने वेदों की रचना भी की है। So where is there a greater opportunity for Vedant Shravanam than to hear it from Krishna? Correct ना? ये क्लियर हो पा रहा है ना? एक्चुअली उसका पॉइंट, मेरी आवाज आ रही है ना देखो? यस गुरुजी। एक्चुअली आनंदगिरी उसने कोट किया था और उसमें कीर्तन का मतलब बताया था कि आनंदगिरी जी तो ये बोल रहे हैं कि वेदांत श्रवणम प्रवणम जपश्चार, कि वेदांत ही सुनो और ओम की चैंटिंग करो। तो प्रपात बोले कि वेदांत को जो कंपाइल करने वाला है कृष्णा, तुम उसको सुनना चाहोगे कि वेदांत सुनना चाहोगे?
तो भगवत गीता जो एक तरह से भगवत गीता की सुपरियोरिटी एक तो दिखाए हैं कि भाई कृष्णा जो वेदांत कंपाइल ही किए हैं, उनको वेदांत कंपाइल भी किए सब पता भी है। तो अब तुम वेदांत को सुनना चाहोगे कि भगवत गीता को सुनना चाहोगे? एक तो ये हो गया। दूसरा कि भाई ओम जो है उसकी चैंटिंग करना चाहो या फिर जिसने उस ओम को कंपाइल किया तुम उसकी चैंटिंग कर लो। सही बात तो है। दोनों बात प्रभात में बोले हैं। फिर उसके बाद उसने शायद एक और वर्स दिया था, उस बात को प्रभात एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी टर्न है क्या? नहीं, ओके ये नवीन प्रभु जी की है। नहीं भैया, रिगार्डिंग नहीं कुछ जी बिजी हो गए शायद। हरी बोल प्रभु जी। ओके ओके, क्या कह रहे हैं? सॉरी मैं थोड़ा सा आपका busy हो गया। टर्न आपने किस चीज के लिए? पढ़ने के लिए। आपका चार्ट। अच्छा तो मेरे यहाँ जो पे रेड कर, आई थिंक वी Sorry. कैन स्टॉप इट। टाइम हो गया कुछ है ना स्टॉप। प्रभु जी इंटरेस्टिंग था आज का। नहीं तो पढ़ना है तो प्रभु जी क्विकली पढ़ देता हूँ मैं। नो ऑलरेडी टाइम हो गया है, बाकी सब लोगों को अपने अपने काम भी होंगे। यस कल कर सकते हैं कंटिन्यू। ओके उदित पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you for joining everyone. Hare Krishna. Hare Krishna.